Hello and welcome, guys. I'm Mrityunjay, and this session, as we know, for the audience, I'll tell you that. We have around six guys who have cracked SIH during their first year, and they all are from BIT Sindri. So मैंने लास्ट 3-4 years से जब से ये SIH हो रहा है इंडिया में कंडक्ट, I've not seen people cracking it in the very first year, and we really wanted to talk to these guys and understand कि इनके लिए how they feel कि first year में crack करना, second how life is, and any academic change या फिर any improvement part which they have seen after cracking this SIH. So welcome you guys to the session, and we'll have a very brief introduction. We have Prince, we have Praveen, Akash, Neeraj, Rimisha, Divyaraj, and we have a moderator Shashank as well with us. Okay. So let's start with we have female Rimisha in the SIS team. So I'll start with her once. So Rimisha, a brief introduction of yours, which branch you are into, and what made you think to be or participate in SIH? And the same question will pass on to others as well. Hi there, this is Rimisha Kumari from Information Technology Branch of Batch 2K24, and I'm from BIT Sindri Dhanbad. Actually, I was not having technical background earlier, and especially my team members motivated me to participate in the SIH. Like, I was having no idea at the very first, but they let me know what SIH is, and I too had a thorough understanding of it. And yeah, this sounded interesting to participate in this. So we started working over it. And initially, we have no idea whether we would get selected or not. But yeah, it did work. And I got to learn a lot of things too. Okay, perfect. How about Prince? Prince, how was your experience and your academic background? If you can briefly tell us. Yes, sir. Sir, myself, Prince Kumar from BIT Sindhi, which is located in near Dhanbad in Jharkhand. Currently, I am in second year, but we have cracked actually SIH in very first year, and my branch is information technology. First of all, the SIH is a national-wide innovation competition, so it is always motivates me mm, to crack it. It is always motivated me because it is a national-wide innovation competition. So but at first I was not that much interested, but my teammates like Divya and also the platform Oscode provided us the guidance to track this and to learn from this. Okay, perfect. So how about Praveen? कैसा रहा? And your branch? Hi everyone, myself Praveen Chaurasia from Information Technology Branch, and I am from BIT Sindri Dhanbad, Jharkhand. So, uh, my team name was Robust Solution, and problem statement ID was SIH that was 02. बेसिकली काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ईयर में जा करके, और वहाँ compete करने के साथ वहाँ कई तरह के जो हम लोग जब फिनाले में वहाँ पहुंचे तो और भी दूसरे दूसरे अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आए हुए थे. स्टार्टिंग में थोड़े नर्वस तो थे हम लोग कि हम लोग एक तो छोटे कॉलेज से, ऊपर से फर्स्ट ईयर में और फाइनल ईयर के भी वहाँ थे, थर्ड ईयर के भी, तो उनसे compete करना थोड़ा नर्वसनेस था. बट जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड किए, एवेल्युएशन राउंड से गुजरे, तो काफी अच्छा लगा और काफी ज्यादा मोटिवेटिंग प्लस काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा वो. Okay. Let's move on to, so we have Akash, Neeraj, and Divyaraj. Akash, you're mute, buddy. Yeah, so hey, good evening, guys. So I'm Akash Sharma from the branch of Information Technology, second year undergraduate from BIT Sindhi Dhanbad. So if you ask about my experience at SIH,
There were many things which I learned from it. First of all, to work at industrial level, to make scalable solutions, and like throughout this journey, Osco really helped me out. Like their 45 days, the Code SIS campaign, like it really helped me out to learn multiple stuff about how things work at the industrial level. And secondly, there was already a family, like my elder brother also has cracked SIH, so he also was a motivation for me throughout this journey. So these were the factors which helped me out throughout this SIS journey, if you ask mine. Okay. Okay. And so we are left with Neeraj and Divyaraj. So, hello everyone. My name is Neeraj Prajapati. I am from Mechanical Engineering branch from BIT Sindri. So first I came पहले तो SIH का नाम हम दोस्त आकाश से सुने। वो पहले हमको बताया कि SIH है क्या। फिर दिव्या हमको बताया कि एक ऑस्कूट का हैकाथॉन होने वाला है, जिसमें कि अगर उसमें हम लोग जीतते हैं तो कैसे SIH के थ्रू SIH में हम लोग को कैसे परफॉर्म करना है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और बाकी जो भी क्रेडिट है हम सब सारे मेंबर को देना चाहेंगे इक्वली। वो सब पार्टिसिपेट किए। बस यही है बस। ओके, गॉट इट। दिव्यराज, आपका इंट्रो हम लास्ट में लेंगे। सो ही इज द गाई। मैं आप लोगों को बता दूं कि द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक अबाउट यू गाइज आर दैट आप लोगों ने इंडिविजुअल से ज्यादा ना टीम के बारे में वी is the terminology which you guys have used, and that's one of the spirit which is required, and I think वो spirit ही आप लोगों को ये SIH विनर बनाया है। रीजन क्योंकि फर्स्ट ईयर में आई विल बी वेरी ट्रू, वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द सेम फेज। फर्स्ट ईयर क्या, हम तो फाइनल ईयर तक भी क्लूलेस थे कि लाइफ में क्या करना है। आप लोगों ने SIH विच इज लाइक नेशनल लेवल एक हैकाथॉन है जहां पे यू नो कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, राइट? फर्स्ट ईयर से भी लोग आ रहे हैं, and in fact there are pass out as well who participate in that SIH. वहां पर that to coming from a small place like धनबाद, आप लोगों ने ये सोचा कि वहां पार्टिसिपेट करना है एंड यू बिकेम अ विनर। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट? इसके अलावा व्हाट आई वांट टू नो अदर देन दिस इज, मुझे लगता है डिकोड SIH विद ऑस्कोड में नीरज और आकाश थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कौन थे उसमें? दिव्या, रिमिशा। अच्छा, रिमिशा भी थी और दिव्या भी था। 4 लोग थे। प्रवीण एंड प्रिंस उस समय नहीं थे पार्ट, राइट? यस। आप सभी IT से हो, सिर्फ नीरज मैकेनिकल से हैं, राइट? यस सर। सो नीरज, आपने ऐसा क्यों सोचा कि IT में आना है और हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है? तो सी इट्स लाइक आप यू आर द ऑड वन आउट, ठीक है? अब ये क्वेश्चन तो उठेगा सब में कि अदर 5 आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड एंड नीरज इज फ्रॉम मैकेनिकल। तो उसने कौन सा रेंच या कौन सा हथौड़ा यूज किया एंड दैट मेड यू गाइज विन दिस SIH? पर ये सारा है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज पे है। ओके। तो मेरा बचपन से ही टेक पे थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था, तो और चीजों को सीखना थोड़ा ज्यादा पसंद है, इस वजह से ही। ओके ओके, परफेक्ट। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि इट्स लाइक, देखो होता क्या, बिकमिंग ऑड वन आउट, बट यू गाइज वर्क टुगेदर एंड वो कहीं ना कहीं आपको ये भी मोटिवेट करता है एंड यू विल आल्सो बिकम अ मोटिवेशन टू अदर्स जो कि ITCS के अलावा भी किसी और ब्रांच से हैं, they can also participate, right? So I'll ask a question to Rimisha because she is the only one in your team. Rest तो male dominating है, होना नहीं चाहिए। It should be balanced, but चलो अच्छा है कि you guys have a team. So Rimisha, you gone through our or you attended our 3 months का वो decode SIH with Oscode, right? क्या Right, sir. हाँ, सो उस पर्टिकुलर मेंटोरशिप मॉडल में वो जो 3 महीने का एक पर्टिकुलर हमने कह सकते हैं काइंड ऑफ
एक क्रैक वर्जन निकाला था विच विल एनेबल एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट टू क्रैक SIH. So how it helped you? मतलब you guys were in first year, as you mentioned कि you were very new, मतलब you heard very late about SIH, right? And it's because of the team you guys gel up and now you thought कि चलो करना है. तो in 3 months में what all things you found useful for you, and anything which you feel कि yes one should, मतलब do let us know कि if we should keep on going thus decode SIH with Oscode का एक 2026 session and so on, if we can keep on running. Yes, sir. So I must say this is a very good initiative because personally मेरे को जिसको इन सब hackathons का कोई idea नहीं था initially. So first, even before participating in SIH, ये decode with SIH Oscode पहला cohort था हम लोगों का. So इसमें we got a very clear guidance, a proper structural guidance must say. Like हमारा weekly evaluation होता था, like कितना progress report है वो check किया जाता था. So that was so good, which helped us a lot. और हर एक evaluation round के बाद एक proper like हम लोगों को बताया जाता था कि what improvement we need to do, what were our mistake, how much we should complete, at what pace we should work. So these were best thing we got to know at that time. So sir, I must say this should get continued further too. Okay. So means eventually see, we also want to continue this, and we hope ki next year I mean to say this year, when the SIH happens for 2026 is, or it is being conducted, eventually we are also looking forward that we should have maximum of the team winning it, and they got trained from us. And in fact आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्रैक किया है, वी वांट यू टू पार्टिसिपेट दिस ईयर एज वेल, अगेन नेक्स्ट ईयर, एंड सो ऑन, by the time you guys are eligible to participate in it, right? कुछ questions I'll ask Praveen. Praveen, so आप लोगों ने जो रोबस्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनाया था, द प्रोडक्ट विच यू गाइज मेड, वो कौन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आंसर करता था? सो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट था लाइक AI बेस्ड ड्रॉप आउट प्रिडिक्शन सिस्टम एंड काउंसलिंग सिस्टम. सो Okay. हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट राजस्थान गवर्नमेंट से था. तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा कुछ था कि लाइक बहुत सारे वहाँ ऐसा रिसर्च में पाया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे ड्रॉप आउट कर रहे हैं कॉलेज एज वेल एज स्कूल. सो Okay. इनके क्या रीजंस हो सकते हैं, ये सब हम लोगों को निकालना था और अपने लाइक मॉडल ट्रेन करके ऐसा कुछ बताना था कि लाइक जब अटेंडेंस और मार्कशीट और उनका फी पेमेंट है या नहीं, एटलीस्ट ये 3 पैरामीटर्स हम लोगों को लेने थे. और 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करना था कि लाइक वो स्टूडेंट का प्रोग्रेस क्या है, वो ड्रॉप आउट करने लाइक वो ड्रॉप आउट कर सकता है या नहीं, और ड्रॉप आउट करेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो ड्रॉप आउट करेगा. और अगर उस जोन में जा रहा है तो लाइक हम लोगों ने 3 जोन में बांट रखा था, रेड जोन एंड येलो जोन एंड ग्रीन जोन. सो ग्रीन जोन में वो अच्छे लाइक जो ड्रॉप आउट नहीं करेंगे, उनका रेगुलर अटेंडेंस है, रेगुलर फी पेमेंट है एंड अच्छे स्कोर कर रहे हैं रेगुलरली. और जो येलो जोन में है वो लाइक उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो उन पे ध्यान देने का जरूरत है. तो वैसे में हम लोगों ने कुछ बोट वगैरह बनाए थे जो डायरेक्ट काउंसलिंग करते, साथ ही साथ जो ऑफलाइन काउंसलर अवेलेबल है उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करवाते. लाइक Okay. उनको काउंसलिंग का जरूरत होता ताकि वो अच्छे काउंसलर से मिले, तो जो भी उनका डाउट हो, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर लाइक 12th से पहले स्कूलिंग में छोड़ रहा है या कॉलेज में ड्रॉप आउट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी की कमी है उनमें. सो मेंटोर से मिलेंगे तो खुद ब खुद उनको क्लैरिटी मिल जाएगा. और जो रेड जोन में जा चुके हैं उनका लाइक बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुका है, वो लाइक ड्रॉप करने का ज्यादा चांसेस है उनका. तो उनके लिए भी सेम ही अवेलेबिलिटी था, लाइक उनके मेंटोर्स थोड़े डिफरेंट थे. और जो भी बोर्ड था हम लोगों के वो ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेंड था उनको बताने के लिए उनके बेसिस पे. सो ओवरऑल ये हम लोगों का प्रोजेक्ट. Okay. So आप लोगों ने क्या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का बेसिकली यूज किया था इसमें, राइट? हाँ सर, कुछ रैंडम फॉरेस्ट एंड ऑल. Got it. Got it. Got it. Okay. So as a team, अब ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? अब मैं बात करूंगा कि एज अ टीम क्या आप लोगों में कभी भी कोई डिस्कनेक्ट रहा?
क्योंकि किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब आप सॉल्व करने जाते हो व्हेन यू आर 4 5 6 पीपल, तो होता क्या है, सबके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, राइट? किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करने का भी तरीका और वे ऑफ एनालाइजिंग इट इज डिफरेंट, ठीक है? सो ऐसे में आप लोगों को क्या लगा कि कौन लीड कर रहा है, कौन सब एक दूसरे को जलप करके चल रहा है? मतलब ये होगा कि टीम में रिमिशा हैज अ रोल, नीरज हैज अ रोल, आकाश है, प्रिंस है, प्रवीण है, दिव्यराज है। तो हम सब एक दूसरे को कौन से कैरेक्टर की तरह देख सकते हैं, बीट एनी कैरेक्टर यू फील कि हाँ इससे रिलेट कर सकते हैं। एनीवन, नीरज, Yes, आकाश, sir. प्रिंस, दिव्या, जो भी बताना Yes, sir. चाहे। Yes, sir. Myself, Diviraj, sir. And सर जब स्टार्ट हुआ था डिकोड ऐसा ही है, जब पहला इनिशियल स्टार्ट था, तब तो सर लाइक हम लोग सब नए थे एकदम, लाइक वी ऑल आर समहाउ ट्रेनिंग, यू कैन से। तो सर इनिशियली तो लगा कि अच्छा नेशनल हैकाथॉन है तो लाइक अब पार्टिसिपेट किया जाए सर। तो पहले सर एक नहीं बोलते सर, एक अच्छा साथी चाहिए कि आप किसी चीज को शुरुआत करने के लिए। तो सर वो काम आकाश किया मेरे लिए, ठीक है, एज अ इनिशियली रोबो सॉल्यूशन का लीडर जैसे थे। तो और सर नीरज सर वो पर्सन है, लाइक सर आप धुरंधर देखे थे ना सर, तो वो जो बलोच का कमांडर था ना सर, कि कुछ भी बोल दीजिए तो हाँ हो जाएगा। हाँ, हाँ, सर वो काम नीरज का रहता है सर, चाहे कितना भी प्रॉब्लम रहेगा नीरज उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेगा सर। उसका रीजन है क्योंकि वो सर हम लोग मैकेनिक। का सर वो समहाउ आप समझ लीजिए सर कि SIH हो या डिकोड SIH हो या थ्रू आउट एनी हो, ये हमारे लिए 80% काम कर देता था सर। लाइक ऑल बाउंड्री सेटअप, सारा बुलेटिन स्टिक, सर ये सब कर देता था। एंड सर ओके, प्रवीण एक एज अ लीडर के तौर पे लाइक मैनेज करने के लिए ही इज द मैन, ये ओके, सब चीज मैनेज कर देता था सर। एंड सर प्रिंस इज वन ऑफ द बेस्ट AI डेवलपर सर। वो डी मतलब ऐसा ऑस्कोड से ही सर वो लास्ट 6 मंथ से ट्रेनिंग कर रहा है। ओके, और प्रिंस भी प्रवीण भी सर सेम वही है। हाँ। ओके, और सर रिमिशा का सर इससे अच्छा प्रेजेंटेशन सर कोई नहीं बना सकता। सर परफेक्ट। इससे ज्यादा डिटेलिंग, इससे ज्यादा प्रेजेंटेशन। और सर यही यही सब सर लाइक सारे इंडिविजुअल अपने अपने काम में, हम लोग भले नए थे सर पर लगे हुए थे, ठीक है, एक दूसरे का बात सुनते थे सर, तो इसीलिए हम लोग का मतलब सर ज्यादा कनेक्ट अच्छा रहा हम लोग के बीच में कोई ऐसा ये नहीं रहा कि अलग अलग हो रहा है या कुछ। हाँ सर। ओके, लेकिन हाँ। आपका रोल क्या था फिर? मैं पांचों का तो समझ गया। सर इन सब को ऑर्गेनाइज करके रखने में मेरा रोल ही है सर। हम्म, Yeah, that's एक्चुअली टेक्निकली वो फीचर ऐड कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट फीचर दिख रहा था, और वो फ्रंट एंड में ज्यादा था बेसिकली उस चीज में। एंड ऑफ कोर्स टीम में है तो एक दूसरे को जोड़ करके रखने के लिए और टीम वर्क करने के लिए, तो दैट परफेक्ट। वाज। अब मैं कुछ बात करूंगा आकाश से। आकाश, योर ब्रदर हैज आल्सो क्रैक्ड इट, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। तो आपके लिए तो ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है नया नहीं होगा, रीजन क्योंकि आपके भाई ने क्रैक किया है, तो एक मोटिवेशन रहा होगा कि भैया ने किया है तो फिर आई शुड आल्सो ट्राई। एंड कहीं ना Yes. कहीं मुझे लगता है वही मोटिवेशन से आपने भी क्रैक किया है, राइट? Yes, sir. He has always been a motivation for me throughout this entire journey. ओके। एंड सो आप लोगों ने मिलके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया था कि ऐसा कुछ करना है, या फिर हाउ इट वाज? मतलब फर्स्ट लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद जब आप सभी अलग अलग सिटी से राजस्थान गए फॉर फिनाले, तो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां मिला? मतलब मैं चाहता हूं आकाश कि आप डिफाइन करो कि एग्जैक्टली exactly एक सफर जयपुर से पहले का कि SIH में क्या Yes, हुआ, sir. एंड देन फिर फिनाले में क्या होता है फॉर द ऑडियंस जो कि इस साल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। So, like, sir, सबसे पहले जो राउंड 1 था,
सो राउंड वन से पहले एसएच के लिए अराउंड लाइक 250 प्लस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी रिलीज करती है. ठीक है. सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि हम लोग ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिसाइड करें जो हम लोग बना पाए. ओके. लाइक देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो गलती करते हैं कि वो ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखे जिसमें उन्हें लगता है कि कंपटीशन कम रहे एंड दे चूज दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस समय ले लेते हैं बट इन द फाइनल दे फंबल ओवर दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि हमने ऐसा पीएस लिया जो हमसे बन एक्चुअली. ओके. सो दिस वाज अ डोमिनेटिंग फैक्टर क्योंकि राउंड वन में इससे फायदा हुआ. सो सबसे पहले राउंड वन होता है इंटरनल राउंड जिसमें हर कॉलेजेस से 45 टीम शॉर्ट लिस्ट होती है. ठीक. एंड देन 5 टीम्स आर इन द वेट लिस्ट इन लिस्ट दैट पे 45 टीम्स में से कोई टीम हटना चाहे तो वो 5 टीम्स वेट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट में आती है. ठीक. आफ्टर दैट कम्स द राउंड टू विच इज द क्रूशियल पार्ट एंड आई थिंक राउंड टू इज लाइक दोनों फैक्टर लक एंड मेहनत दोनों पे वो चलती है. ठीक है. सो अराउंड हमारे पीएस में 500 सबमिशंस आए थे एंड ऑफ 500 सबमिशंस 5 टीम्स वर सेलेक्टेड. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशंस जो गाइडेंस मैं देना चाहूंगा कि आने वाली टीम्स को सिलेक्ट होने के लिए, पहला पावर पॉइंट कंसाइज रखना, दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है उसे हाईलाइट किया जाए एंड डायग्रामेटिक फॉर्म्स में अपना आंसर्स या फिर जो सॉल्यूशन है उसे प्रेजेंट करना. इफ यू हैव अ प्रोटोटाइप और एनी डॉक्यूमेंटेशन यू कैन अटैच द लिंक, वो आपको एक्स्ट्रा एज देती है, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसका लिंक भी आप डाल सकते हैं. ऑल ऑफ दिस लाइक गिव्स एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर्स. एंड आफ्टर दिस कम्स द राउंड थ्री. राउंड थ्री में लाइक इफ यू नीड टू विन द ओनली फैक्टर इज दैट यू हैव टू इम्प्रेस द मेंटोर्स. सो फॉर दैट Okay. 3 राउंड ऑफ इवेल्युएशन होती है, 3 बार आपके पास मेंटोर्स आते हैं. फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड और एनी अदर थिंग विच इज पार्टिसिपेटिंग इन एसआईएच, मेंटोर्स आपको जो भी चेंजेस दे रहे हैं वो आपको करना आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए. Hmm. Because in the end it is up to the mentors, they will decide that which team is winning or not. So आप उससे प्रोवाइड ही नहीं करें कि उसे क्या चाहिए. So in the Hmm. end they will not give you the points. So round 3 में जीतने का फर्स्ट प्रायोरिटी है to give the mentors what they want. Second, पीएस में जो भी रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी ने दिया है वो सब फुलफिल करना. एंड देन तीसरा प्रोडक्ट स्केलेबल या एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना. So these are like round 1, round 2 and round 3 of the entire exercise journey which we covered up. Okay. And the finale is starts from round 2 or round 3? Round 3, the finale, Round the final round, offline hackathon. ठीक ठीक ठीक. Okay, got it. So I'll sum it up क्योंकि अभी I'll not keep it much lengthier because we have spoken to everyone. अब एक बार मैं थोड़ा सा प्रिंस से बात कर लूंगा for 2 minutes क्योंकि उसका रह रहा है. We have spoken to नीरज, प्रवीण, रिमिशा, दिव्यराज, you. So प्रिंस, Yes, sir. मुझे बस ये बता दो कि what should be the motivation for a first year to crack this या फिर participate. मतलब आप किसी फर्स्ट ईयर को क्या सजेस्ट करोगे कि एटलीस्ट जैसे कहते हैं ना कि पार्टिसिपेशन इज मच इम्पोर्टेंट देन इफ यू विन, बिकॉज विनिंग इज समथिंग विच इज इन अदर पीपल हैंड, राइट? फाइनल डिसीजन मेकर कोई और होता है. Sir, actually, when after knowing that it is a nationwide innovation hackathon, it should be the motivation for everyone, as it is a nationwide innovation in which the government of India is supporting it. Okay. So it should be the motivation for everyone to crack it, at least participate in this and learn from this. It's provide a platform where we have to move to different cities to talk to different students of different colleges and make our network to know others what they are doing, what they are learning, new things. Yeah, these things motivates always. Okay. Got it. So it's like आफ्टर विनिंग तो फॉर श्योर SIH जीतने के बाद पर्क्स बेनिफिट्स भी होते हैं, आपके Yes, कनेक्शंस sir. अच्छे बनते हैं, काफी मेंटोर्स से आप मिल सकते हो एंड ऑफ कोर्स वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है आपके प्रोफाइल पे, एकेडमिक्स रिज्यूमे पे, एंड कॉलेज में भी एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बन जाता है प्रोफेसर्स पे कि दीज गाइज आर सुपर शॉट्स, एवेंजर्स टाइप का. हाँ भाई ये एंट्री कर रहे हैं, अब कुछ अलग है.
So I wish you guys all the very best, and I'm looking forward. So we'll connect again for sure, हो सकता है, and we'll connect one on one, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, and I would like to have few more discussion on it and some chit chat so that वो motivation बने 2026 and so on students का participate करने का. Okay. So thanks a lot, guys. We recorded this video a bit late night, but thanks for your cooperation. Okay, all the very best. Thank you. Yes, sir. Okay. Thank Thank you, you, sir. sir. Sir.